Good morning, all of you. Okay, 8th class students. Today we dictate a question, right? Question answers. Today we are dictating question answers. There are 2 questions are remaining there. One answer is left. Yes, Nandini. So everybody has a copy and pen. सब लोग अपना कॉपी पेन के साथ बैठे हैं ना? Right? Students, डिटेल क्वेश्चन में फर्स्ट हमने आपका कट करवाया है. सेकंड, व्हाट आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स? यस्टरडे you have to mark it, right? Yesterday you have to mark. Third, describe the distribution of wildlife in the world. इसको अभी हम आपको डिक्टेट करेंगे. एंड लास्ट वन आल्सो जो हमने चेंज कराया है आपका. क्लियर? Now distribution of wildlife. आप heading डालिए. पहले first you write down the question, then you write the heading, the distribution of wildlife in the world. Okay? Okay, students. ठीक है, देखिए. अब इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए. हेडिंग रिपीट कर रही हूं मैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. क्लियर? सब लोग, आप लोग बहुत अटेंटिवली अगर सुनेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट आप अगर सुनने के साथ साथ और भी अपने कामों में इन्वॉल्व है घर के, तो फिर आप नहीं सुन पाएंगे. Whenever you attend that class, sit in a proper way, listen attentively, right? Okay. Answer, heading, distribution of wildlife. Then you write down first point. अब आप इसका first point लिखिए. लिखिए. Our wildlife is OURR. Wildlife is quite. क्यों? आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं, तो साथ के साथ आप बुक में भी, अगर कोई स्पेलिंग आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप बुक में भी देख सकते हैं. पेज नंबर 19. पेज नंबर 19. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. और वाइल्ड लाइफ इज क्वाइट एक्सटेंसिव and includes a large variety of animals. A large variety of animals. A large variety of animals, comma, fishes, 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 birds, 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 and insects. And insects. I repeat. Our wildlife is quite extensive and includes a large variety of animals, fishes, birds, and insects. Over a million. सेकेंड पॉइंट लिखिए. सेकेंड पॉइंट, अगर फर्स्ट वाला छोटा इट्स ओके. अब आप सेकेंड से स्टार्ट कीजिए. जहां से भी आप सुन रहे हैं आप वहां से स्टार्ट कीजिए.
एट द लास्ट मैं आपको रिपीट कर दूंगी बात, राइट। अगर आप बार बार वन वन पूछते रहेंगे तो फिर जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो अपना उनका बहुत लेट हो जाएगा। एट लास्ट मैं आपको दोबारा से सारा रिपीट कर दूंगी। अभी आप सेकंड पॉइंट लिखिए। ओवर अ मिलियन स्पेसीज, over a million species are already known, KNOWN, to the world, to the world. फिर थर्ड पॉइंट लिखिए, the equatorial forest, the equatorial forest the equatorial forest have the greatest GREATEST, greatest variety of wildlife, greatest variety of wildlife. ओके, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन एशिया, बेटा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था आर वाइल्ड लाइफ, सेकेंड पॉइंट बताया था ओवर अ मिलियन स्पेसीज वर्ल्ड, फिर मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। पेज नंबर 20 पर आ जाइए। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, लेफ्ट साइड फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट have the greatest variety of wildlife. ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एशिया, एशिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, एशिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। पेज नंबर 20 चल रहा है ये, और आप सुन पा रहे होंगे मुझे अच्छे से। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, बस आप अटेंटिवली सुनते रहें। एशिया इज रिच इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इन टेम्परेट एरियाज, इन टेम्परेट, TEMPERATE, TEMPERATE, in temperate areas, cranes, 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 foxes, bears, etc. are found. Cranes, foxes, bears, etc. are found in taiga, in the taiga region, taiga and tundra region, taiga and tundra region, in the taiga, TAIGA, and tundra, TUNDRA, tundra regions, fur bearing, FUR, fur bearing animals, FUR, fur bearing animals like polar bears, and minks, 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 etc. are found. Polar bear and minks, etc. are found.
Next point, in Africa, has an extremely varied wildlife, has an extremely varied, V-A-R-I-E-D, varied wildlife. Africa has an extremely varied wildlife. Africa, yes, fifth point Africa वाला है. Africa has an extremely varied wildlife. Extremely varied wildlife. Elephants, crocodiles, elephants. As I dictate you, student, according to my dictation, you write down it, right? Don't ask here and there कि आपको ये करना है, वो करना है. जैसा मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है. If I say headline, तभी आपको headline, right? Elephants, crocodiles, chimpanzees, elephants, crocodile, chimpanzees are found in equatorial forest. In equatorial forest. Next point, Europe. Next point, Europe. Europe में wild sheep. In Europe, wild sheep, wild, W-I-L-D, wild sheep and native, N-A-T-I-V-E, native antelope are the native, N-A-T-I-V-E, and native antelope are the main species found here. Main species found here. नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉइंट. आप ये इसी पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. इन साउथ अमेरिका, the anaconda a huge reptile is found here. In the anaconda, a huge reptile is found there. Is found there लिखना है बस, ठीक है. In North America, the reindeer, R-E-I-N-D-E-E-R, reindeer, Arctic fox. In North America, the reindeer, R-E-I-N-D-E-E-R, reindeer, Arctic, the R-E-I-N-D-E-E-R, reindeer, comma, Arctic fox, A-R-C-T-I-C, fox, F-O-X, are found in these regions.
नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो भी नंबर आपका है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया kangaroos and koalas are found only in Australia. Kangaroos and koalas are found only in Australia. In Australia, kangaroos and koalas are found only in Australia. In Antarctica, same point continue. In Antarctica, Antarctica, in Antarctica, penguins, Penguins, penguins are native, Penguins. Penguins are native to this continent. फिर आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये सेम पॉइंट कंटिन्यू। अभी करती हूँ बेटा, पहले हम इसको ये क्वेश्चन एंड पर है, राइट? तो आपको जरा ध्यान देना है थोड़ा। लास्ट वाला पॉइंट आप लिख लीजिए। इंडिया इज होम टू अ रिच variety of birds and animals. India is home to a rich variety of birds and animals. ठीक है, फिर लिखिए India's national animal the tiger. India's national animal, the tiger, is found in many parts of the country. India is home to a rich variety of birds and animals. India's national animal, the tiger, is found in many parts of the country. Clear students? ठीक है, बस एक लास्ट लाइन आपको लिखनी है इसमें। The peacock is the national bird of India. The peacock is the national bird of India. The peacock is the national bird of India. Parrots, kingfishers, are some commonly found birds. CIRDS birds. Done. Now this answer is completed.
राइट। अब आपका जो फर्स्ट पॉइंट, ये शिवम सिंह आप फर्स्ट पॉइंट पूछ रहे हो, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद है आर वाइल्ड लाइफ इज क्वाइट, आप अपनी बुक का पेज नंबर 19 निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट एंड ये पूरा आंसर रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा बेटा, हम इसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे, राइट। अगर आप नहीं लिख पाए हैं आपके पोर्टल पर पीडीएफ शेयर हो जाए। क्लियर क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। अब जिसका भी रह गया है वो फिर इसी तरह कर लेगा। अभी आप लास्ट आंसर देख लीजिए इसका, लास्ट आंसर हमने आपको चेंज करवाया था, ठीक है। यस, हाँ आप कॉन्टिनेंट को अंडरलाइन करके उसको शो कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका कॉन्टिनेंट वो शो कर सकते हैं आपसे। आपको कल हमने एक क्वेश्चन दिया था, राइट सम वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। जिसने भी लिखा है वो जरा चैट पर लिख कर दे दे ये क्वेश्चन, जिससे सारे बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को शेयर हो जाएगा वो क्वेश्चन, जिसने भी कंप्लीट उसको किया है। those students had written this, कल थर्ड क्वेश्चन को हमने आपके साथ शेयर किया था, चेंज करवाया था उसको बेटा। What are the different ways? Yes, Mayank, लिखिए। What are the different ways of conservation of forest and wildlife? What are the different ways of conservation of forest and wildlife? What are different ways? WAYS. Different ways. WAYS. Ways of conservation of forest and wildlife. Right? इसका आंसर आप देखिए, आंसर है पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, ठीक है। अब आप उसमें पेज नंबर 22 में जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट कीजिए। लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ वेजिटेशन बाय ओवरग्रेजिंग शुड बी चेक। फर्स्ट पॉइंट टिक करिए, फर्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ वेजिटेशन टिक करिए। सेकंड पॉइंट टिक करिए, सेकंड पॉइंट टिक करिए। फिफ्थ पॉइंट टिक करिए, फिफ्थ पॉइंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट टिक करिए, इसका जो लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 8th point, trade in things made by ivory, horn and animal skin should be stopped. Trade in things made of ivory, horn and animal skin should be stopped. Now there are 5 points, right? So 5 points write down in this answer. Yes, 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 Christy. Done, students? अब आपका अगर कुछ छूटा है तो आप पीडीएफ के थ्रू इसको शेयर कर लीजिएगा, राइट। डन।
ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी जो बुक में अर्शित यू कैन शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बोल दे रही हूँ ये पॉइंट्स, ये नेट का बहुत कनेक्शन है, या तो नेट की प्रॉब्लम है या आप लोग खुद उठकर चले जाते हैं। मंडे तक आप सबके पास आपके पोर्टल पर भी पहुंच जाएगी, ठीक है। आप पॉइंट्स देख लीजिए अगर किसी के रह गए। आपको पेज नंबर 22 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, फिर लास्ट में 8th पॉइंट, 5 पॉइंट्स आर देयर, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 8th, ठीक है, 5 पॉइंट्स आर देयर। नाउ वी डिस्कस द सिलेबस ऑफ योर बुक। आपकी जो बुक में पूरी टोटल 7 यूनिट्स दी हुई, राइट, 7 यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपका 3 chapters had done, है ना, 3 chapters had done in geography, राइट, यूनिट 1 जो आपकी है। अब आपकी जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपका एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, ये सब है। यूनिट 3 आपका है ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। यूनिट 4 है हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ाएंगे ऑन मंडे। यूनिट 4 से एक चैप्टर पढ़ाएंगे हिस्ट्री का, द मॉडर्न पीरियड, ठीक है, ठीक है, मॉडर्न पीरियड। ओके, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, योर मीटिंग इज गोइंग टू ओवर, ठीक है। तो हम मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री का, तो आपके हर सब्जेक्ट से हो जाएगा, ज्योग्राफी से ये हो गया, हिस्ट्री से ये हो जाएगा, देन वी स्टार्ट पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सिविक्स से ले लेंगे, इस आपके तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाए। नंदिनी, आप किसकी स्क्रीन की बात कर रहे हैं? सृष्टि, आप स्क्रीन, यू डोंट हैव अ बुक? नंदिनी, यू डोंट हैव अ बुक? बेटा, बुक तो परचेज करनी होंगी आप सबको एज सुन एज पॉसिबल। आप बुक परचेज के कर लीजिए। अगर स्क्रीन शेयर की जरूरत नहीं है, मैं मंडे को पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ, अगर आप नंदिनी, अगर आपका 3rd वाला जो चैप्टर है, 3rd वाला जो क्वेश्चन है, तो जो अभी मैं आपको बता रही हूँ बेटा, सुनो पहले, ठीक है। आपके पास बुक है, पेज नंबर 22 आप ओपन कीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर आपका बॉक्स में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट में बोल रही हूँ, टिक करिए, लॉस ऑफ वेजिटेशन वाला, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड नॉट बी, राइट। नंबर आपका 5 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंबर 6, इंडेंजर्ड स्पेसीज। और नंबर 8, ट्रेड इन थिंग्स। आपको ये चीजें, ये 3rd का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमने क्वेश्चन आपका शेयर भी किया था अभी, ठीक। तो उसका ये आंसर है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है, तो आपके पोर्टल पर पीडीएफ होगा क्वेश्चन आंसर का, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ओके। और अभी हमने आपको मंडे का बता दिया है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी ध्यान से कुछ नहीं सुनते हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन में फर्स्ट हमने कटवाया है, सेकंड, 3rd और 4th, यानी कि देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला हमने कटवा दिया है आपका, सेकंड, 3rd एंड 4th आपको करने हैं, जिसमें से अभी हमने आपको ये आंसर 4th का जो क्वेश्चन है उसका बताया। फर्स्ट हमने कटवा दिया, और अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर ठीक है, आप पीडीएफ के थ्रू कर लीजिएगा।
Tomorrow, I don't know what is the tangible of tomorrow or a holiday. You got the information. Whatever it's there, you get the information. Right? और कोई doubt है आपको तो पूछ लीजिए. There are 2 minutes. Okay, if Julie man said it's okay, tomorrow is holiday. Okay, students. Okay, okay. पीडीएफ संडे तक अपलोड हो जाएगी बेटा, संडे तक हो जाएगी अपलोड, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी भी है. तो अभी आपकी कल छुट्टी है तो मैं बैठ करके सारी चीजें करती हूँ, देन संडे तक आपको मिल जाएगी. नाउ इज देयर एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब इस चैप्टर का कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है? अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है तो यू कैन आस्क मी. Okay, students.